سبسکرائب کیجیے رضا اینڈ ازہری نیٹ ورک کو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے کو جھکا دی. جب میں 40 اولیاء کرام نے اپنی گردن کو جھکا دی, سچے یاجوج و ماجوج میں 7 اولیاء کرام نے اپنی گردن کو جھکا دی, اور بحر محیط کے جزیرے میں 24 اولیاء کرام نے غوث اعظم کے اس قول کو سنتے ہوئے اپنی گردنوں کو جھکاتے ہوئے کہا تھا, اے عبدالقادر جیلانی, آپ کی سلطنت پانا ہم سب کو منظور ہے. آپ کی سلطنت پانے کی وجہ سے عذاب بلند مقام عطا فرمائے گا. سرکار آسی فرماتے ہیں, گردن اولیاء کی زیر پا کون ایسا ہے سوائے دوست. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سرزمین کارا باری حضرت علامہ و مولانا مجسم فانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. من بین رسول پر ایک شہرت یافتہ ثنا خوان رسول شاعر اسلام اختر پرواز نعیمی مراد آبادی میرے رفیق القصب ہیں, ہمارے کافی رابطے ہیں, اللہ ان کو دراز عمر عطا کرے. آج وقت گفتگو ہو رہی ہے, گردنیں ہیں اولیاء کی زیر پا کون ایسا ہے سوائے غوث پاک. غوث اعظم پیدا ہوئے 470 ہجری میں, اس سے پہلے جنید بغدادی دنیا میں تشریف لا چکے تھے. جنید بغدادی مستی کے عالم میں ہے, وجد کے عالم میں ہے, سرور کے عالم میں ہے, اور ایک جملہ کہتے جا رہے ہیں. وہ جملہ کیا ہے؟ قدماہ علی رقبتی, قدماہ علی رقبتی, قدماہ علی رقبتی, یعنی ان کا قدم میری گردن پر ہے. ان کے مریدوں نے پوچھا, حضور یہ کیا فرما رہے ہیں آپ مستی کے عالم میں ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کا قدم میرے بھی گردن پر ہے, ان کا قدم میرے بھی گردن پر ہے. مریدوں نے پوچھا, حضور مسئلہ کیا ہے؟ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ 5 صدی میں ایک بزرگ پیدا ہوگا, ایک مرد قلندر پیدا ہوگا, ایک حقیقت کا ایک شہسوار پیدا ہوگا, عارفوں کا ساجدار پیدا ہوگا. مجھے کشف کے ذریعے سے دکھایا جا رہا ہے, وہ بندہ جب دنیا میں آئے گا وہ آ کر کہے گا کہ قدمی ہادی علی رقبتی کلی فردی جھلا, یعنی میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے. وہ تو سینکڑوں سال بعد آئے گا, لیکن ان کی شان جلالت کے آگے میری گردن جھکی جا رہی ہے. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ قدم ہو علی رقبتی, یعنی آپ کا قدم میری گردن پر ہے. یعنی جنید بغدادی بھی غوث اعظم کے قدم کے آگے اپنی گردن کو جھکا رہے ہیں. سرکار آسی فرماتے ہیں, گردن اولیاء کی زیر پا کون ایسا ہے سوائے غوث پاک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا کانفرنس سرزمین کارا باری فیضان حضور مجمع البحرین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ حضرت جواب نہیں ہے. اللہ اکبر. جنید بغدادی فرماتے ہیں ان کا قدم میرے بھی گردن پر ہے. اللہ اکبر. یہ جنید بغدادی ہیں. ایک مرد قلندر کے بارے میں بتاتا ہوں. اس مرد قلندر نے کیا کہا ہے, ایک کتاب کا نام ہے تفریح الناظر بمناقب شیخ عبدالقادر, ایک جامع کتاب, اور اس کتاب کو لکھنے والے بھی عبدالقادر اربلی ہیں. اربلی ایک عظیم الشان محقق کا نام ہے. اس کتاب میں تحریر فرماتے ہیں ایک مرد قلندر کے بارے میں جسے دنیا عشق اسے اویس کرنی کہتی ہے. اویس کرنی کون ہے؟ یہ اویس کرنی مرد قلندر ہے جنہوں نے اپنی ماں کی خدمت کرتے کرتے زندگی گزار دی تھی. مصطفیٰ کا زمانہ پایا لیکن ماں کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہ دے سکا. کہ اویس کرنی ہے. ان کی شان یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اویس کرنی کو پکڑ لیا جائے گا, رکھا جائے گا. تم ٹھہرو بھی. جب اویسی کرنی سے کہا جائے گا پیچھے دیکھو, جب پیچھے دیکھیں گے ادھر جہنمیوں کی لائنیں لگی ہوگی. اسے کہا جائے گا کہ تو اشارہ کر, جدھر جدھر تو اشارہ کرے گا اس کو جنت بھیج دیا جائے گا. حضرت اویسی کرنی کہیں گے رب قدیر یہ کس عمل کا صلہ ہے؟ وہ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرمائے گا, اے میرے محبوب جو تم نے دنیا میں ماں کی خدمت کیا تھا اسی کا
का सिला तुम्हें आज दे रहा हूँ। ये अवैसे करनी है, अवैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक अजीम शान ताबई है। हजरत उमर फारूक और हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मुस्तफ़ा ने कहा था, ए मेरे सहाबियों सुनो, एक मर्द कलंदर एक अवैस करनी रहता है तरन से, मुझे इश्क की बू आ रही है, वहाँ एक मर्द कलंदर है, सुनो जब तुम वहाँ जाना मेरा ये जुब्बा उसे अता कर देना, और जुब्बा देने के बाद उसे कहना मोहम्मद अरबी ने अपनी उम्मत के लिए तुझे दुआ करने के लिए कहा है। उनका क्या मकाम है, मुस्तफ़ा कह रहे हैं, उनसे कहना कि मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत के लिए दुआ करने कहा है। अल्लाह अकबर, वक्त की किल्लत है, मैं तेजी से गुजर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, फिर ऐसा हुआ हजरत उमर फारूक और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम दोनों आए। जब आए अवैसे करनी के पास, उन्होंने सलाम किया, आपने जवाब दिया, आप अवैसे करनी है? उन्होंने कहा, किसने बताया? उन्होंने कहा मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने कुछ निशानियां बताई है, वो निशानी जरा हमें दिखा दे। निशानी दिखाई गई, देखा अवैसे करनी ही है। कहा क्या कहा है? कहा मुस्तफ़ा ने तुम्हारे नाम पैगाम भेजा है। आंखें दबदबा आई कि मेरे महबूब ने मेरे लिए पैगाम भेजा है। वो कौन सा पैगाम है? कहा ये जुब्बा तुम्हारे लिए भेजा है, ये जुब्बा, और कहा है कि तुम उनके उम्मत के लिए दुआ करना। हजरत अवैसे करनी आंखें दबदबा जाती हैं, कहते हैं हजरत उमर फारूक ने पूछा, आपने मुस्तफ़ा की जियारत नहीं की? उन्होंने कहा आपने जियारत की? कहा मैंने तो जियारत की। हजरत अवैसे करनी पूछते हैं, ए उमर फारूक जरा ये बताइए, तुमने तो मुस्तफ़ा को देखा है, लेकिन मुस्तफ़ा की कैसी सूरत थी, उनकी भुआं कैसी थी? अल्लाह अकबर। हजरत अवैसे करनी के सवाल पर हजरत उमर फारूक दिल मिला जाते हैं, कहते हैं मैंने तो उसे देखा है, मुख्तलिफ मकाम पर उसे देखा है, लेकिन मुस्तफ़ा इतने हसीन और तवील थे, किसी की निगाह उस पर टिकती न थी कि उसके निगाह को आंखों में कैच कर सके। इसी खूबसूरती को सज्जदना सरकार आसी ने कहा था, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या है, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या कहते, नस्ल ठहरती नहीं आरी से मनोपर पर। मेरे महबूब को देखा है, उनकी आंखें अल्लाह मासाग है, उनका चेहरा वह शम्स है, उनकी जुल्फें वह लैल है, लेकिन जरा ये तो बताते मेरे महबूब की सूरत कैसी है, उनकी भुआ कैसी दिखती है? हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने मुख्तलिफ मकाम पर उसे देखा है, मैंने मदीना में उसे देखा है, मैंने मक्का में उसे देखा है, मैंने सफर में उसे देखा है, मैंने हजर में उसे देखा है, मैंने खलवत में उसे देखा है, मैंने जलवत में उसे देखा है, लेकिन चेहरे की कशिश ऐसी थी कि निगाहें जमती न थी, निगाहें उसका आंख से नहीं ले पाती थी। किसी आंख के अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि मुस्तफा को लगातार देखता रहे। तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आदि से मनवर पर आदि वकाफिर ऐसा होता है। हजरत उमर फारूक कहते हैं इसे ज़ेबतन कीजिए, ज़ेबतन करने के बाद मुस्तफा की उम्मत के लिए मग़फ़िरत कीजिए। हजरत अवैसे करनी उस जुब्बे को पहनते हैं, पहनने के बाद सजदे में जाते हैं, सजदे में जाने के बाद दुआ करते हैं, ऐ रब्बे कदीर तुझे तेरे महबूब का वास्ता, अपने महबूब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह अकबर। दुआ इजाबत इलाही से जाके टकराती है, आवाज आती है, ऐ अवैसे करनी मैंने तेरे लिए मुस्तफ़ा की आधी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दी। हजरत अवैसे करनी ने इसरार फरमाया, रब्बे कदीर और ज्यादा मैं चाहता हूँ कि और उम्मत की मग़फ़िरत किए जाए। इस वाक़ये को मैं फिर से बता दूं, तफरीहुन नाज़िर बी मनाक़िब शेख अब्दुल कादिर, इस किताब में एक वाक़या आप देख सकते हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं ए अल्लाह मैं चाहता हूँ कि कुछ और उम्मत की मग़फ़िरत हो जाए। आवाज़ आती है, ए अवैसे करनी मैंने तेरे लिए आधे उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दी है, लेकिन आधे उम्मत की मग़फ़िरत एक बंदा आने वाला है जो मेरे महबूब का महबूब होगा, वो मेरा महबूब होगा, वो अब्दुल कादिर जिलानी होगा। मैं उनके सदक़े से आधी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दूंगा। मैं उनके लिए मैं आधी उम्मत रख देता हूँ। अली वक़ा जब पूछते हैं
अवैस करनी, ए रब्बे कदीर ये अब्दुल कादिर कौन है? आवाज आती है, ए अवैस करनी वो मेरा महबूब है, वो मेरे महबूब का महबूब है। पूछा कदीर अभी वो है कहाँ? आवाज आती है, आवाज आती है, वो काबा कौसैन के वो तजल्लियों में गुम है, और वो काबा कौसैन के तजल्लियों में गुम है। ये मकादी सिद्क़ इंदा मलिक मुक़्तदिर के जलवों में अभी वो गुम है, अभी वो आया नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम इरशाद फरमाता है वो अब्दुल कादिर मेरा बुरहान है, मेरी दलील है, मेरे लिए हुज्जत है। यानी वो एक अजीम शान ख़ास होगा। और सुनो, जब वो दुनिया में आएगा वो कहेगा कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है। ए अवैस करनी वो आने के बाद ये जुमला कहेगा कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है। हज़रत अवैस करनी बेताब हो जाते हैं और कहते हैं रब्बे कदीर जब वो आएगा वली कदम झुकाएंगे, लेकिन रब्बे कदीर अभी वो आया नहीं है। उनके आने से पहले अपनी गर्दन को मैं झुका रहा हूँ। गर्दन को झुका रहा हूं। ये मकाम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी है, ये गौसुल कॉन्फ्रेंस है, ये सरकार आशिकी का शेर यानी गर्दन है औलिया की ज़ेरे पा। कौन ऐसा है सिवाय गौस पाक? सरकार आशिकी का एक शेर इतना जामे है, अगर सरकार आशिकी के एक शेर पर गुफ्तगू की जाए घंटों नहीं बल्कि रातों की जरूरत है। सरकार आशिकी गाजीपुरी का वो मकाम है जो हम जैसे लोग इतना समझ सकते हैं, हम जैसे बेइल्म, हम जैसे कम इल्म इतना समझ सकते हैं। अगर हुजूर गुलाम यासीन इस शेर पर अगर तबसरा फरमाए तो बताओ कैसा तबसरा फरमाते। अगर हुजूर शाह साहब इस शेर पर तबसरा फरमाते तो कितना अजीम शान तबसरा फरमाते। आली वक़ार के मकाम सज्जदना अब्दुल कादिर जिलानी है। एक मरतबा सज्जदना अब्दुल कादिर जिलानी अपने घर से गायब हो गए। लोगों ने तलाशना शुरू किया कि अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ चले गए। लोग चलते चलते ढूंढते ढूंढते दरिया दजला के करीब आए, देखा अब्दुल कादिर जिलानी दरिया के ऊपर चल रहे हैं, समंदर की मछलियां आके पोसा ले रही हैं। अल्लाह अकबर। सज्जदना अब्दुल कादिर चल रहे हैं, समंदर की मछलियां पोसा ले रही है। अल्लाह अकबर। कुछ देर गुजरा, आसमान से एक मुसल्ले का नुज़ुल हुआ, वो अजीम शान मुसल्ला जिसमें आयत लिखी हुई थी अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तमाम के तमाम मुरीदों ने देखा मुसल्ला नाज़िल हुआ। हुजूर सज्जदना अब्दुल कादिर जिलानी मुसल्ले पर खड़े हुए, ज़ुहर का वक्त था, आपने नमाज पढ़ी। कितने कुतुब थे, कितने अब्दाल थे, कितने नुजबा थे, जितने नुक़बा थे, तमाम के तमाम हासिल है। सज्जदना गौसे पाक ने नमाज पढ़ाई। अल्लाह अकबर। जिस वक्त आपने तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहा, हामिलीन अर्श आसमान के फरिश्तों ने आपके साथ अल्लाह अकबर कहा। जब आप तस्बीह पढ़ते फरिश्ते आपके साथ तस्बीह पढ़ते, जब आप सुभान रब्बियल आला पढ़ते मलाइके मुकर्रबीन आपके साथ सुभान रब्बियल आला पढ़ते। सज्जदना अब्दुल कादिर जिलानी ने नमाज से फरागत हासिल की। फरागत हासिल करने के बाद आपने आसमान की जानिब हाथ उठाया और कहा ऐ रब्बे कदीर, मैं अपने मुरीदों को और अपने मुरीदों के लिए दुआ मांगता हूँ कि जब तक वो तौबा न कर ले उसे मौत अता करना। यानी मेरा हर मरने वाला जब मुरीद मरे तो ईमान की हालत में मरे। हजरत सज्जदना अब्दुल कादिर जिलानी ने दुआ फरमाई। अल्लाह अकबर। रावी लिखते हैं जब सज्जदना अब्दुल कादिर जिलानी ने दुआ फरमाई, आसमान से आवाज आई उबशिर यानी खुशखबरी हो, मैंने तेरे लिए तेरी दुआ कबूल फरमा ली है। यानी तेरे किसी भी मुरीद को कुफ्र की हालत में मौत नहीं होगी। यानी मैं तेरी दुआ को कबूल फरमाता हूँ। अल्लाह अकबर। ये गौसे आज़म की
غلام ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے درود شریف پر اللہم صلی اللہ خلافت سے نوازا مصطفیٰ شفیع